Good morning, 12th class. So we are starting with chapter number 4 of history, that is thinker, beliefs and buildings. And we'll be talking about mainly the cultural development that occurred during this time period around 600 BCE to 600 CE. तो हम ये देखेंगे इस टाइम पे एक नई थॉट प्रोसेस, नई आइडियोलॉजी, नई ways of maybe also thinking and then making people think और नए beliefs develop हो रहे थे and also was developing the new kind of buildings and structures जिसके बारे में we'll be studying in detail in this chapter. So to start with basically in this chapter हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे जिनका हम देखेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था ये अंडरस्टैंड करने का व्हाट इज वर्ल्ड. देयर वर मेनी यू कैन से things that people were not clear about and they wanted to know what exactly is truth, what is life, how should we live, how should we lead our life, what exactly is world, how were these things formed, what is the ultimate true, मतलब क्या रीबर्थ होता है, what is this cycle of life and birth, reincarnation होता है, all these kind of questions were now being pondered about. लोग सोच रहे थे and that is why इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे बहुत सारी नए नए आइडियाज आ रहे थे जिनको ऑब्वियसली हमें कैसे पता कि इस टाइम पीरियड में आ रहे थे, क्योंकि इनको ओरल और जितना ओरली भी था और रिटन वे में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता था इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वाले मटेरियल में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में. इन एवरी ऑफ दीज थिंग्स वी कैन एक्चुअली पॉइंट आउट the kind of ideology that was developing during this time period. और वैसे तो हम देखेंगे as I said there were variety of thinkers who were becoming important during this time, पर mainly we will be focusing on Buddhism. ओके और उससे रिलेटेड जो ट्रेडिशन थे. बट इसका मतलब ये नहीं है बुद्धिज्म उस टाइम पे एकदम अकेली या एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी. उसके साथ साथ ही हम देखेंगे जैनिज्म भी आ रहा था. देयर वर फ्यू चेंजेस दैट वर अकरिंग इन द ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस और उसको भी थोड़ा सा डाइवर्जन किया जा रहा था, किसी किसी जगह पे उसको एम्फसाइज किया जा रहा था. सो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, रिटन सोर्सेज है, मटेरियल सोर्सेज तो है ही इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और इसी में हम देखेंगे जो मेन हम वाइल रिकंस्ट्रक्टिंग देयर आइडियाज एंड बिलीव्स, चाहे वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हो, जैनिज्म से रिलेटेड हो या ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो, हमारे पास बहुत सारे रिमेन्स हैं. और जो स्पेसिफिकली हम जिसको डिटेल में पढ़ेंगे इन our this chapter, that will be Sanchi Stupa, because it is one of the stupa which is totally available for us to study nicely, and it is lucky actually कि it was not destroyed or still remains in the condition where we can study more about it. And it tells us a lot about basically the tradition of Buddhism and also the kind of architecture that was being, you can say, developed at that time. ठीक है. Now this is one box that is given in your book on page number 82, and here is a description basically by the one of the ruler of Bhopal, शाहजहां बेगम जो है उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है. and we will just have a look at this. The most wonderful ancient buildings in the state of Bhopal are at Sanchi. Sanchi Kanakera, a small village under the, you can say, hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. So she is basically talking about the Sanchi Stupa. And we inspected the stone sculptures and the statues of the Buddha and even one ancient gateways. The ruins appear to be object of great interest even to the Europeans. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in the neighborhood and examined these ruins very carefully. He took drawings of the place. He tried to he obviously deciphered the inscription, and then he tried to study the domes and the other structures.
and the result of his investigation are obviously described by him in his English work. So that means हमें ये पता चल गया कि इस time period में अब this was a place of great interest for the Europeans as well. And this is one ruler of this is one ruler of Bhopal who is describing about this stupa. ठीक है, तो ये तो हो गया कि बहुत ग्रेटली इट वाज बिल्ट. तो इसी से रिलेटेड थोड़ी और चीजें देख लेते हैं. 19th सेंचुरी में यूरोपियंस वर रियली इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ दीज स्तूपास एंड द अदर बिल्डिंग्स. हमें पता है रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल एंड अदर वर्क्स, बट स्पेसिफिकली अगर हम देखें स्तूपा इस सांची की तरफ, द यूरोपियंस वर रियली इंटरेस्टेड. इनफैक्ट जो फ्रेंच लोग हैं वो शाहजहां बेगम के पास आए थे एंड वांटेड एंड आस्क्ड हर बेसिकली टू परमिट देम. उनसे परमिशन लेने की कोशिश की कि वो जो ईस्टर्न गेटवे है उसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको वो लोग म्यूजियम में रखेंगे फ्रांस में. वो ही बेस्ट जगह है जहाँ पे इस इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ जो ईस्टर्न गेटवे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है. फॉर अ वाइल कुछ इंग्लिश मैन जो है वो भी यही चाहते थे, बट फॉर्चुनेटली बोथ फ्रेंच और इंग्लिश को समझाया गया कि आप एक काम करो, इसका एग्जैक्टली प्लास्टर कास्ट कॉपी जैसे बना के आप लेके जा सकते हो, और ओरिजिनल जो है उसको इसी साइट पे रहने दो भोपाल में. तो ये जो रूलर्स हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जो सांची का स्तूपा है वो अच्छी कंडीशन में रह जाए. तो जो रूलर्स थे भोपाल के, शाहजहां बेगम और उसके बाद हर सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवन दे प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस साइट. एंड इसीलिए हम देखेंगे कि जॉन मार्शल जो है उन्होंने समवेयर बहुत इंपॉर्टेंट अपने वॉल्यूम्स जो है सांची के वो डेडिकेट किसके लिए किए थे, टू सुल्तान जहान. क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना मतलब ट्राई कर रहे हैं कि जो ये सांची का स्तूप है ये इंटैक्ट रह सके और प्रिजर्व किया जा सके. शी इवन फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर. यहाँ पे आसपास जो म्यूजियम बना था इससे रिलेटेड उसको भी उन्होंने फंड किया. इवन जो गेस्ट हाउस था जहाँ पे जॉन मार्शल रहते थे, तो ऑब्वियसली अपने ये इस सांची स्तूपा से रिलेटेड वॉल्यूम्स लिखते थे, उसको भी उन्होंने ही फंड किया था. शी ऑल्सो फंडेड इवन द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स दैट वर रिटन बाय हिम. देन उसके बाद हम यही बोल सकते हैं, इफ दिस स्तूपा हैज सर्वाइव्ड ऑब्वियसली इट इज इन नो स्मॉल मेजर टू, बिकॉज जो यहाँ के रूलर्स थे उन्होंने कोशिश की थी इसको प्रिजर्व की जब भी बात हुई कि इसका ये पोर्शन ले जाए या वो, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि ऐसा ना हो. एंड देन दे इवन फंडेड कि इसको प्रिजर्व किया जा सके, इसको बेटर कंडीशन, जैसी कंडीशन है वैसी में रह सके, और इसके ऊपर स्टडी भी की जा सके. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ के रूलर्स के वाइज डिसीजन एंड ऑल्सो यू कैन से कि गुड लक है इस सांची स्तूपा का, कि जो वरना क्या होता था, कोई भी बिल्डर्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स या ये लोग, इनको जब भी ऐसी चीजें, ऐसे स्टोन्स मिलते थे, इवन फ्यू ऑफ द लाइक यूरोपियन पीपल हु वांटेड टू टेक थिंग्स टू म्यूजियम, अगर उनकी नजरों में आ जाते तो वो लोग कुछ ना कुछ इसका कुछ पोर्शन उठा के कैसे भी लेके जा सकते थे. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स, द ये जो सांची है ये इसने हमारी बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको एड ऑन किया है. वी आर बीइंग एबल टू नो अ लॉट मोर अबाउट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस सांची स्तूपा. टुडे इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एविडेंस जो क्लियरली हमें दिखाता है कि अगर हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रॉपर्ली प्रिजर्व और रिस्टोर किए करें तो वो इंटैक्ट रह सकते हैं, जैसा कि सांची स्तूपा के साथ हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यू स्तूपास जो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं. उसका कोई पत्थर कोई ले गया है, कोई यूरोपियन ले गया, कुछ हिस्सा टूट गया है, कहीं प्रिजर्व नहीं किया है. एंड ये वाली कंडीशन बहुत सारे स्तूपास के साथ हुई है. दैट इज व्हाई वी अगेन एंड अगेन से कि एक गुड लक है कि सांची स्तूपा जो है वो अपने पास एक अच्छे कंडीशन में अवेलेबल है स्टडी करने के लिए. Okay, and they have just told us that if you tend to go to
सपोज इफ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, तो आपको ये जो स्तूपा कॉम्प्लेक्स है ये दिखेगा ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, जब आप सांची एरिया से पास करोगे तो। ओके, एंड अब नाउ आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्तूपा। यू मे थिंक कि एक मॉन्यूमेंट को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्या इसमें, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, और ये इस स्ट्रक्चर में क्यों बनाई जाती थी, माउंट के फॉर्म में ही क्या बनाई जाती थी, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, किसने ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कौन फंड करता था, फाइनली ये डिस्कवर क्या क्यों हुआ, पूरी इससे रिलेटेड जो स्टोरी है कैसे ये रिलेट करती है, हमारे पास जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो स्कल्पचर है वो हमें क्या बताता है, इनका किस टाइप का आर्किटेक्चर था, क्या हमें यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, व्हाट इज you can say so important about this particular stupa, and why are we studying about this in so much of detail, and we are totally discussing about it. This is what we will be talking about in this chapter, और स्पेशली हम देखेंगे कि बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है that will be given to us by this these kind of obviously sources that are available, or specifically we will be studying about this Sanchi Stupa that is clearly visible on your screen in this chapter. And with keeping this in mind, we will understand the other aspects. But before moving on to the other detail, हम देखेंगे कि background क्या था. We'll not start from a scratch कि ऐसे बुद्धिज्म start हो गया या spread होने लग गया या ऐसे जैनिज्म हुआ था. But we'll go slowly and gradually we'll understand first the background कि ऐसा क्या हुआ था इस time पे. There were lot of scholars, thinkers that were coming around the world. इस time period को actually हम बोलते हैं पूरे world history का एक बहुत बड़ा change है. Everywhere people were trying to bring out new ideology, trying to solve the problems of the whole ये जो survival है and the whole circle of life and death. Everyone was around the world. There were lot many thinkers who were coming up with these ideas. और ये आइडियाज ही हमारे इंडिया में महावीर एंड गौतम बुद्धा के थ्रू एज ग्रेट थिंकर्स आए थे, अबाउट विच वील बी स्टडिंग in detail in this chapter. Okay, so this is it for today. I suppose आज जितना हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है that must be clear to you people. अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, otherwise we will meet tomorrow. Okay, so now we'll meet tomorrow and continue with the chapter.